Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of your integral calculus and we are going to discuss 7.3 of your NCERT book. So in the last video I have told you about the substitution method, right? And मैंने बोला भी है कि that is the basic method जो हम लोग हर जगह पे use करेंगे. Substitution method के बाद there is one more method that is trigonometric substitution. ठीक है? अब मेथड क्या बोल रहे हैं, these are the varieties covered in your different exercise, right? Methods कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है and accordingly we are using the different concept of integral calculus. Okay, so trigonometry के अंदर में you have learned all the trigonometrical concept in your class 11th and ITF inverse trigonometric concepts in your class 12th, right? So in this lecture, we are going to study that that all identities. We're going to use that all identities, and by using that identities, we'll solve the integral calculus, the problem of integration. Okay. So I'm letting a very I'm taking a very simple question: integration of sine square 2x plus of 5. This is the question from your 7.3. Just find the number. I don't know which number is it. I mean 1 2 3. मेरे को नहीं पता कौन सा number है. I've just chosen a few questions to tell you the concept of trigonometric substitution. Okay. Now the thing is कि जब भी मेरे पास में sin square of theta, मेरे पास directly sin square of theta का कोई formula नहीं है, right? Integration में. तो जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले हैं मेरे पास में. इनफैक्ट कॉस टू थीटा के तो चार फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे भी अपने को दो फॉर्मूले की यूज होंगी. एक फॉर्मूला है अपना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन. अगर कॉस स्क्वायर थीटा वाला आया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा. Here you can see that your question given in the form of sine square theta. So I'm using this formula. How? Just transfer this 2 sine square theta in the left hand side, and now it is 1 minus of cos 2 theta, and sine square theta is equals to 1 minus of cos 2 theta upon 2. Okay, just substitute that value. So this will be 1 minus of cos. I mean, substitute that this identity. I'm not substituting any value. I'm substituting this identity like this. Cos, अब देखिए थीटा के प्लेस में क्या है आपके पास में, आपके पास में 2x plus 5. So just write it down like this and upon 2. So I'm using this identity here to rewrite your given question. Okay, why so? Because there is a no any formula which will tell you what is the integration of sine square theta. Okay, now do one more thing. It is 1 by 2. I'm taking it separately, minus of 1 by 2, and this will be cos 4x plus of 10 and dx. Okay, what I have done, I have taken both of this part of this question separately, so that it will become integrable. Okay, now guys, you can see that this will be integrable easily. 1 by 2 है वो तो 1 by 2 बाहर करेंगे, खत्म कहानी. But what about this? हमने substitution method में पढ़ा है that I can take this as t. Okay, just do that. Let 4x plus of 10 is equals to t. Then do the differentiation. It will give you 4 dx and it will be dt. So the value of dx is dt by 4. Okay, value of dx is dt by 4. Now do one more thing. Just wait a minute. Okay, ये हो गया आपका 1 by 2. अब बाहर लिख दीजिए, यहाँ पे 1 into dx है, minus of 1 by 2. dt by 4 है तो 1 by 4 I've taken it in the front of your function or integral sign, and this is t, it is t and it is dt. What I have done, I have substituted dx by dt by 4 and 4x plus 10 with t. Okay, so this will be 1 by 2 and it becomes x minus of 1 by 8 and it will become sine t plus of c. So this is x and this is t. So what I need to do in the next step, I need to substitute the value of t. So this becomes x by 2 minus of sine 4x plus of 10 upon 8 plus of c, and this is my answer. Okay, so as you can see that I have used the substitution method, right?
And with that, parallelly, I have been used the identities of your trigonometric and inverse trigonometric. I'm using the identities of trigonometric and inverse trigonometric function. So in this particular question, I have been used a formula cos 2 theta, which is equals to 1 minus of 2 sine square theta. And by using it, I have found out the value of sine square theta and I have substituted this value over here. That's why it is known as trigonometric substitution method. Okay. So just take a screenshot of this question, and if you do have any, doubt, you can do the message in the comment box, right? Let's have another question to understand this phenomena, this method. And one another question: 1 minus of cos x upon 1 plus of cos x, and then dx. जो भी कोई भी अगर टीचर आपको क्लास 11 से पढ़ा रहा होगा, उसने आपको बताया ही होगा कि भाई जब भी 1 माइनस कॉस एक्स या फिर 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स दिखेगा, तो आपको एकदम आंख बंद करके एक ही फॉर्मूला यूज करना है, विच इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2x. Okay, which I have been discussed in the previous question. So I'm rewriting this question as, before solving, I'm simplifying this function as 1 minus of 2 sine square x by 2 upon 1 plus of 2 cos square x by 2 minus of 1, and this is dx. Just open the bracket now. It is 1 minus of 1 plus 2 sine square x by 2 upon 1 plus of 2 cos square x by 2 minus of 1, and this is dx. So this and this will be cancelled out, and this will be cancelled out. We have done this thing many times, right? So ये हो गया आपका 2 sin square x by 2, and this becomes 2 cos square x by 2, and this is dx. So this and this will be cancelled out, and now you left with integration of 10 square x by 2 into dx. Okay, one more identity I want to use over here, which is 1 plus 10 square x is equals to sec square x. Or more, I can say 10 square x will be equals to sec square x minus of 1. So I can rewrite this function as, this will be sec square x by 2 minus of 1, then dx. I can write the term separately to make it integrable like this. Okay. Now one more thing, I know that there is a no any formula for sec square x by 2. I need to substitute this value. So I'm using the substitution, let x by 2 is equals to t. So this will become dx. 1 by 2 dx is equals to dt. Or more, I can say dx will be equals to 2 dt. Just use the substitution. So this will be 2, and this is sec square t and dt minus of 1 into dx. So guys, now this function is integrable. How? This is 2 sec square t will give you 10t, and this is minus of x. Okay. Now substitute the value of t, which is x by 2, and minus of x or plus of c. So this is my answer. तो आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर में दो चार फॉर्मूले यूज होने लग गए. ठीक है, तो 7.3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जहां पे आपका पूरा 11th और 12th का जितना भी कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो सारा सब कुछ यूज होने वाला है, स्पेशली 11th का. है ना? 11th में आपने जितनी भी सारी आइडेंटिटीज रीड आउट करी है, वो सारी यहाँ पे यूज होने वाली है. तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, वहाँ पे सारे फॉर्मूले एनलिस्ट कर लीजिए जो भी आपने क्लास 12th में 11th में आपने पढ़ा हुआ है, और उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम्स बनाने के लिए बैठिए, तो इट विल हेल्प यू. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन. एक इजी क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे होगा. sin 3x and cos 4x, integration of sin 3x into cos 4x. ठीक है, जब मैंने 7.2 में आप लोग के साथ में डिस्कस किया था, तो आपकी ये दोनों वैल्यू सेम थी. ठीक है, बट यहाँ पे यू कैन, तो अपन ने sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया था, बट यहाँ पे यू कैन सी इट इज लाइक a एंड इट इज लाइक b. तो मेरे को ये पता है कि अगर मेरे पास 2 sin a cos b होता था, तो ये कुछ ऐसा होता था, sin a plus b प्लस, एक बार आइडेंटिटी आप लोग बिल्कुल जब भी लगाने के लिए बैठेंगे ना, तो आइडेंटिटी जरूर चेक करेंगे, सो दैट आप लोग की सोल्यूशन में किसी टाइप का मिस्टेक ना हो. है ना? जैसे 2 sin a cos b और इस तरीके के सारे जितने भी आपके पास में फॉर्मूलाज हैं, उन सभी के लिए आपको आइडेंटिटी
यूज करना है और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई उसमें क्या यूज होने वाला है, कैसी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। ठीक है, तो अभी अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे साइन ए और कॉस बी। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, जस्ट वेट अ मिनट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस ऑफ बी। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है तो आप लोग अपनी बुक से चेक कर सकते हैं, है ना। और तो ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस बी। आप क्या कीजिए, इस टू को, ये जो टू लिखा हुआ था यहाँ पे इसके साथ में, उसको आप क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। तो अपन ने क्या किया, 1/2, ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी एंड प्लस ये हो गया साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करो, अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब यूज करो। ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला। तो इट विल बी 1/2, राइट। एंड ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी विल बी 7x प्लस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी विल बी विल बी माइनस ऑफ x। एंड ये हो गया आपका dx। इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला। Okay, now 1/2 is common and this will be sin 7x minus of sin of x and ये कितना हो गया dx. Now write the integral values separately, so it will give you integration of sin 7x dx minus of integration of sin x और ये हो गया dx. So guys it becomes 1/2 और ये 7x का मैंने आपको बोला था, आप यहाँ पे t रख के भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि x में सिर्फ 7 है, वो कहाँ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। So it becomes minus of cos 7x upon 7 minus of cos x minus cos x plus of c. So the answer will be, so the answer will be, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos 7x upon 14 प्लस ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस ऑफ c/2, तो वो तो कांस्टेंट ही है, आप इसको c1 कर दीजिए और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बन जा रहे हैं। ठीक है, और बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज है 11th क्लास के, वो आप लोग को बिल्कुल एक पेपर में क्या करना है, नोट करके रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे रैंडम कुछ क्वेश्चंस किए सो दैट मैं आप लोग को कंसेप्ट बता सकूं कैसे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जब भी साइन कॉस साइन साइन कॉस कॉस ये सब अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना ही है ये साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, या टू साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, जितने भी फॉर्मूलाज है ना सारे यूज होने लग जाएंगे। आप बिल्कुल अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इतने क्वेश्चन जो डिस्कस किए उससे आपको हेल्प नहीं हो रही है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप अपने एग्जाम्पल्स को भी रिफर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी भी गिवन है, आप वहां से भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है आपके इस बुक का। cos 2x minus of cos 2 alpha and cos x minus of cos अल्फा। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो फटाफट करते हैं, ये दिख रहा है आपको cos c माइनस ऑफ cos d, याद आ गया होगा आप लोग को फॉर्मूला, cos c माइनस ऑफ cos d। तो ये होता है आपका माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड ये होता है साइन c माइनस ऑफ d बाई 2, राइट। अब क्या करेंगे अपन, आप देख रहे हो कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पे है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पे क्या हो रहा है, cos c माइनस ऑफ cos d यूज हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको यूज कीजिए, राइट। कैसे यूज करेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी विच विल बिकम 2x प्लस ऑफ 2 अल्फा बाई 2 एंड साइन 2x माइनस ऑफ 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 एंड साइन x माइनस ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि cos c माइनस cos d के पैटर्न में तो ये आपको दिखाई दे ही रहा था, राइट। व्हाट मोर यू नीड टू डू, आप देखिए माइनस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यार ये साइन है, टू तो ऊपर से और नीचे से कैंसिल, आई मीन ये वाला टू, ये वाला टू, ये वाला टू, तो इट बिकम्स एक्स प्लस एल्फा और ये हो गया आपका एक्स माइनस ऑफ एल्फा। यहाँ पे आप देखो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 एंड साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2। अब क्या करें, अभी तक तो अपने को समझ में आ गया था, जो भी सिंप्लीफिकेशंस थे अपन ने बना लिए थे। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार क्यों ना इसको मैं
कुछ चेंज करूं, कुछ बनाऊं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। थोड़ा सा ना इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं ना जब भी क्वेश्चन बनाना है तो। अब देखो, अगर मैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करती हूँ तो ये होता है आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा। उसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखने की कोशिश करूँ तो इट विल बी टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, इज इट? यस। तो आप इसको ऐसा देखने की कोशिश कीजिए, इसको भी और इसको भी। अब क्या करेंगे हम? सो दिस विल बी टू साइन x plus alpha by 2 and cos x plus alpha by 2 into 2 sin x minus alpha by 2 and cos x minus alpha by 2। तो मैंने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में फॉर्मूला लगा दिया। अपॉन लिखिए जो भी लिखा हुआ है, sin x plus alpha by 2 and sin x minus of alpha by 2। अब कैंसिल कीजिए, क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाती है, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ में और ये कैंसिल हो गया इसके साथ में। व्हाट इज लेफ्ट नाउ? अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं किया है ना, सब में आपको इंटीग्रेशन लिखते चलना है। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो भी मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। यस, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द होल फंक्शन। अब देखते हैं अब क्या क्या चीज हमारे पास बची, जस्ट उसको एनलिस्ट करो, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अपन ने लिखा वापस से इंटीग्रेशन एंड हमने देखा यहाँ पे 4 बचा है cos x प्लस एल्फा बाई 2 एंड cos x माइनस ऑफ एल्फा बाई 2। ठीक है ना? तो और ये dx, तो ये आपके पास में चीजें बच गई, cos x प्लस एल्फा बाई 2 cos x माइनस ऑफ एल्फा बाई 2 और इनटू dx। अब क्या कर सकते हो आप? आपके पास में ये हो गया 4 cos a cos b, राइट? तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 बाहर कर लेते हैं और 2 cos a और cos b। ठीक है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बताइए। ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो वापस से यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन के अंदर में 3 फॉर्मूलाज, 1 2 एंड फिर 3। 2 cos a cos b का फॉर्मूला मेरे को यूज करना है, बिल्कुल इसको हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 cos a cos b विच इज cos a प्लस b। cos a प्लस b जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2x बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, cos a प्लस cos b। ठीक है, cos a प्लस बी हो गया, अभी हो जाएगा cos a माइनस ऑफ बी। जब आप cos a माइनस ऑफ बी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ एल्फा। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों परफॉर्म करना है। सो इट बिकम्स नाउ, एक मिनट, लेट मी चूज अ ब्लैक पेन। इट बिकम्स नाउ 2 cos x dx plus of 2 cos alpha dx। So guys it becomes 2 sin x, ये cos alpha तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 cos alpha, अंदर में सिर्फ x बचा तो ये x और प्लस क्या हो गया आपका c। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपने देखा कि आंसर तो मैम बहुत ही छोटा सा आया है बट कहानी बहुत बड़ी हो गई। तो इसीलिए मैंने बोला है कि एक पेपर लीजिए, सारे फॉर्मूले लिस्ट कीजिए और जो पैटर्न दिखाई देता है, ट्राई टू फाइंड दैट पैटर्न कि मैम ये cos c माइनस cos d जैसा दिखाई दे रहा है, दिख जाना चाहिए। मैम यहाँ पे sin 2 थीटा लगना है, दिख जाना चाहिए। यहाँ पे 2 cos a cos b लग रहा है, ये भी आपको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कब दिखेगा? जब आप 7.3 के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम्पल्स का आप हेल्प लेंगे, मेरे वीडियो की हेल्प लेंगे। So guys, thank you for watching this video. We have done with the 7.3 and your doubts are most welcome in my email ID and the comment box. And we'll meet in next lecture with the 7.4. Thank you.